Good afternoon, students. Today we'll discuss the new chapter, that is spreadsheet, ranges and functions. In this chapter, we'll discuss these topics: introduction, methods of entering formula, working with ranges, cell referencing in worksheets, working with multiple worksheets in a workbook, what are functions, and formatting data. But today we'll discuss only first three topics. Before starting this, first I want to tell you the introduction about the Excel. What is an Excel? Spreadsheet is a MS Excel sheet which is used to store, compute and organize data. MS Excel, which is also known as spreadsheets, is an application software which is used for all types of calculations and analysis. This application is used by almost every business firm that records data. So in short, we can say that this is a software which is used for doing all the calculations and analysis. Also, spreadsheets have become a useful tool for personal record keeping. In this chapter, we shall learn about some newer capabilities of spreadsheet. How you learn more to enter formula, refer to cells and using functions in spreadsheet. So, the first topic that we cover today is methods of entering formula. How you can enter formula in a spreadsheet. Spreadsheet is a sheet which has number of rows and columns. You have already seen an Excel sheet which has multiple rows and columns. So there are three ways of enter formula in Excel, but one thing remains common, that is every formula must begin with equal to sign. So we have three methods that are type directly in cell. Second method, refer to cells using mouse, and third one is using equivalent functions. It means कि हम तीन तरह से अपने सेल्स के अंदर फॉर्मूला एंटर करते हैं. आपको ऑलरेडी पता है कि एक्सेल जो है वो यूज़ करते हो, आप फॉर्मूलाज इसमें अप्लाई करते हो, आप कैलकुलेशन इसमें करते हो. सो वी हैव द कैपेबिलिटी टू enter the formulas in this sheet. So we have three ways: type directly in the cell, refer to cells using mouse, or you can use mouse, or you can equivalent write a function on it. So we're discussing one by one each method here. Before starting this, I would like to tell you that what each and every component of the Excel sheet is known as. The very top one, this is the title bar. This one, the second one, below the title bar we have the menu bar, and after that we have this ribbon. Then what is this? This is the name box where we have written a F4 key. So this is a name box and this is the function fx. This is the formula bar. We have this A, B, C, D, E, F. This is the columns heading, and here 1, 2, 3, 4, 5 and so on. This is the row headings. So the first thing is type directly in a cell. यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक्सेल का दिखाया है. इस तरह से आपकी एक्सेल की शीट शो होती है. इसके अंदर हमारे पास
हमने डायरेक्टली टाइप करना है। डायरेक्टली टाइप में हमें 3 चीज़ों को हमेशा याद रखना है। सबसे पहली चीज़ कि हमेशा जब भी आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है तो फॉर्मूला हमेशा आपका तभी अप्लाई होता है व्हेन यू हैव टू यूज़ अ इक्वल टू साइन, जो हमने पहले भी आपको पढ़ा हुआ है। आपकी पहली स्लाइड में भी मैंने आपको ये बताया था कि आपका फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन के साथ ही लगता है। तो यहाँ देखिए दिस वन इक्वल टू साइन हमेशा हमारा लगा होगा। और दूसरी बात जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, जहाँ पे भी आपने फॉर्मूला लगाना है आपने उस सेल को पहले एक्टिव करना है। तो उस सेल को एक्टिव करने के लिए यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दैट सेल। और तीसरी चीज़ जो है वो क्या है कि फॉर्मूला यूजेस द सेल रेफरेंस इन प्लेस ऑफ वैल्यूज़। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाऊंगी कि ये तीनों चीज़ें क्या कहती हैं डायरेक्टली टाइप करने के लिए। पहले तो मुझे क्लिक करना है उस सेल पे। सो आई हैव रिटन 1 2 3 4 Q1 Q2 Q3 and Q4. This is the table and I want to add all the values of this. So I have written here टोटल एंड मुझे यहाँ पे टोटल करने के लिए कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पे एक्सेल में फॉर्मूलेज होते हैं, ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑटोमेटिकली उसको खुद सेव कर ले। तो हमें वो कैसे करना है, तो इसका मतलब डायरेक्टली आपने टाइप करना है। तो मैंने क्या करना है, इसको पहले इस सेल को क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस द सेल वेयर फॉर्मूला इज टू बी टाइप्ड इज करंट सेल। दिस इज द करंट सेल। करंट सेल जहाँ पे हमने क्लिक किया उसका वो बोल्ड हो जाता है, ब्लैक कलर की बाउंड्री दिखती है आपको। तो ये इसका मतलब ये क्या है, एक्टिव सेल है। इस एक्टिव सेल में क्लिक करने के बाद वी हैव टू टाइप द इक्वल टू साइन। देखिए पॉइंट सेकंड क्या कह रहा है, फॉर्मूला बिगिंस विद द इक्वल टू साइन। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पता है कि जो भी आप एक्टिव सेल होता है उसके बाद वो फॉर्मूला बार में वो चीज़ वैल्यू दिखती है। तो यहाँ मैंने इक्वल टू साइन डाला तो ये यहाँ पे आपको शो होगा फॉर्मूला बार में इक्वल टू साइन आ गया। दिस इज द सेकेंड रूल। एंड द थर्ड रूल इज़ कि यहाँ पे आप ये नोटिस करें मुझे इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है 20, 19, 18 एंड 17.5। तो इसमें मुझे क्या करना है, दिस इज़ द एड्रेस, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। दिस इज़ द एड्रेस ऑफ द 20, जो 20 है यहाँ पे हमें 20 करना था, 20 प्लस 19 प्लस 18 एंड प्लस 17.5। तो 20 जो है वो किसके अंदर है, कौन से सेल के अंदर है, वो है B4 के अंदर। आप देखिए यहाँ पे पूरा ऐड करके फॉर्मूला लगाया है, B4 प्लस C4 प्लस D4 प्लस E4। सो हमारे पास 4 सेल्स हैं, 1 2 3 4। वो चारों सेल्स यहाँ पे देखिए 20, ये 20 हम कैसे निकालते हैं, हमें सेल एड्रेस पहले भी पता है। दिस इज़ द कॉलम हेडिंग B एंड दिस इज द रो हेडिंग 4। सो ये आपकी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम जो बनाती है वो सेल बनाती है। तो इस सेल का एड्रेस जो होता है वो होता है B4। सो B4 के अंदर 20 है। तो आप यहाँ पे देखिए जब भी मैं डायरेक्टली टाइप करूँगी तो मुझे इसमें वैल्यू टाइप नहीं करनी, क्योंकि वैल्यू टाइप करने से वो कांस्टेंट वैल्यू लेता है। तो हमें इसको कांस्टेंट वैल्यू नहीं, हमें इसका फॉर्मूला लगाना है जैसे आप मैथ्स में यूज़ करते हैं ABC। उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, B4 प्लस ये नेक्स्ट वाला क्या है, C4। दिख रहा है आपको, मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, यहाँ पे दिखा सकती हूँ मैं आपको, रुकिए वेट करिए। ये देखिए ये सो वी हैव दीज 4 वैल्यूज़। वो 4 वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, 20 का एड्रेस है B1, दिस इज B1, दिस इज B4, दिस इज C4, दिस इज D4 एंड दिस इज E4। तो हमने इन सबको ऐड किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 74.5। दिस इज द एड्रेस ऑफ total of all these numbers. So this is how we can enter directly in the cell. हमने एड्रेस का लिखना है, यहाँ पे सेल एड्रेसेस लिखने हैं rather than entering the value। B4 प्लस C4 प्लस D4 प्लस E4, ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे यहीं पे फिल की हैं और ये आपको शो हो रही हैं। नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेफर्स टू सेल यूजिंग माउस। अब हमने माउस के साथ हमें इससे
नेक्स्ट जो नेक्स्ट है वो क्या कह रहे हैं हमारा, रेफर्स टू सेल यूजिंग माउस। आप माउस से किस तरह से कर सकते हैं, तो माउस के साथ हमने कैसे करना है, पहले आपने यानी अब आपने टाइप नहीं करना है इसको, वही चीज़ पहले तो वही चीज़ याद रखनी है, आपने एक्टिव सेल बनाना है। एक्टिव सेल हमारा कौन सा है, F4, यहाँ पे ये F4 है। तो माउस के साथ मैंने क्या किया, पहले मैंने ये एक्टिव सेल बनाया, ठीक है, जहाँ पे मुझे अप्लाई करना है फॉर्मूला। उसके बाद मुझे दूसरी चीज़ जो याद रखनी है, इक्वल टू साइन लगाना है। इक्वल टू साइन लगाने के बाद तीसरी चीज़ क्या करनी है, मुझे जस्ट क्लिक करना है इसके फर्स्ट वाले तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ इस पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस सेल पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, इसकी बाउंड्री ये आपको डॉटेड वाली दिख रही है, ये बाउंड्री यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे इसने इसका एड्रेस लिख लिया, वो कौन सा था, B4। जैसे मैंने ये लिया, उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने टाइप किया एक्टिव सेल में, मैंने क्या किया, प्लस टाइप किया। देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, यहाँ पे भी आपको वो शो हो रहा है, प्लस टाइप किया क्योंकि मुझे ऐड करना है। इसको ऐड करने के बाद नेक्स्ट क्या लूँगी मैं, अब मैंने दूसरा इस सेकंड वाले नंबर पे क्लिक किया। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये वाला सेल एक्टिव हो गया, और ये सेल एक्टिव होने के बाद इसने इसका एड्रेस ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बार में लिख लिया। देखिए यहाँ पे भी वो वही चीज़, एक्टिव सेल में जो भी आप लिखेंगे वो आपको फॉर्मूला बार में भी शो होगा। तो C4 आ गया, दिस इज द सेकंड सेल का वैल्यू जो है, सेकंड सेल एड्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसी तरह से मैंने इसको प्लस टाइप किया, थर्ड वाला भी किया और फोर्थ वाला भी किया। लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू आई वो सारी इन सभी को ऐड करके B4, C4, D4, E4 इन सबको ऐड किया। तो ऐड करने के बाद ये चीज़ आ गई, और इसके बाद मैंने इसको एंटर किया। जब मैंने इसे एंटर किया, देखिए यहाँ पे इस सेल में, इसी सेल में ये फॉर्मूला लगा है, क्योंकि ये एक्टिव सेल है। तो देखिए फॉर्मूला बार में ये चीज़, यही फॉर्मूला मैंने लगाया था, और ये फॉर्मूला लगाने के बाद जब मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 74.5। यहाँ पे 74.5 वैल्यू आई, लेकिन यहाँ पे एड्रेस के ऊपर जो इसमें एक्टिव लिखा क्या था, मैंने फॉर्मूला लगाया था, और वो फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में शो होगा। अब ये देखिए, दिस इज द नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द फॉर्मूला। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको अभी लास्ट में दिखाती हूँ। जैसे देखिए ये हो गया सम हुआ, और F4 इज द एक्टिव सेल वेयर आई वांट टू एंटर द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दीज सेल्स। तो ये यहाँ पे आपको शो हो गया। तो इससे आपको पता चल गया कि किस तरह से हम माउस के साथ इसको एंटर करते हैं वैल्यू। इसमें हमें टाइप कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक्टिव सेल बनाना है, इक्वल टू लगाना है, एंड आफ्टर दैट जस्ट सिंपल क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाएंगे, और क्लिक करने के बाद आपके वो एड्रेसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होते जाएंगे। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या है, हम किस तरह से फंक्शंस के थ्रू हम इसको ऐड करेंगे। तो थर्ड मेथड है यूजिंग इक्विवेलेंट फंक्शन। तो इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जाना है फॉर्मूला। देखिए मेनू बार में हमने फॉर्मूला वाले को क्लिक किया, टैब को क्लिक किया, मेनू बार में फॉर्मूला टैब को क्लिक किया। इसके अंदर देखिए यहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस आ गए हैं, आपने टेक्स्ट डालनी है, क्या डालनी है। तो हम अभी सम कर रहे थे, ऑटो सम, ये आपने स्टैटिक्स में भी किया होगा। इसको सम लगाने का ये होता है कि इस तरह से हम इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमने इसको ये किया, पहले वही पहली चीज़ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें एक्टिव करना है सेल को, तो मैंने इसको एक्टिव कर लिया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मैंने उसमें फॉर्मूले में जाके मुझे क्या करना है, रेंज सिलेक्ट करनी है कि मुझे सम किस किस को करना है। तो मैंने ये 20 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये सेल मैंने क्लिक किया था, यहाँ से मैंने रेंज सिलेक्ट किया, इसलिए इसने यहाँ पे शो किया 20। तो ये पूरा इसने क्लिक किया। देखिए B4, ये सेल नेम था B4 की वैल्यू 20 है, ये आपको दिखाता है यहाँ पे नेम ऑफ द सेल एंड वैल्यू ऑफ द सेल फॉर्मूला बार में। तो ये मैंने पूरा रेंज सिलेक्ट किया, ये आ गया हमारा सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप क्या था, पहले सिंपल क्लिक किया, एक्टिव सेल बनाया। एक्टिव सेल बनाने के बाद मुझे नेक्स्ट क्या करना है, रेंज को सिलेक्ट करना है जिसको मुझे ऐड करना है।
उसके बाद मैंने क्या करना है, फॉर्मूलेज में जाके ऑटो सम पे क्लिक किया। जैसे मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये इस तरह से एक एग्जांपल बता रहा है आपको कि मैंने इन सब वैल्यूज़ को ऐड किया है, तो ये सम फंक्शन लगा दिया इसने। जैसे मैंने इसको ये कर दिया, फंक्शन लगा दिया, उसके बाद ये देखिए ऊपर देखिए सम की रेंज इसने यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू 74.5 तीनों फंक्शन से वैसे ही निकला मैंने जब किया था। और यहाँ देखिए यहाँ पे जो फंक्शन लग रहा है, देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है, सम। सम ब्रैकेट के अंदर ये एक रेंज सिलेक्ट किया है। रेंज में आपको अभी नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी कि रेंज क्या होती है। ये क्या है, B4 से लेके E4, कोलन का मतलब E4 तक। तो ये देखिए ये B4 है, दिस इज B4, दिस इज C4, दिस इज D4 एंड दिस इज E4। तो कहाँ से कहाँ तक है रेंज, मैंने आपको दिखाई थी, मैंने सिलेक्ट किया था 20 से लेके 17.5 तक, यानी B4 से लेके E4 तक। मैं ऐसे भी लिख सकती थी सम B4 प्लस C4 प्लस D4 प्लस E4, बट मैंने शॉर्टकट जब इसने फॉर्मूला अप्लाई किया तो उसने क्या किया, सम का फंक्शन बना के, फंक्शन बनाने के बाद उसने क्या किया, रेंज सिलेक्ट कर ली B4 से लेके सीधे E4 तक। इसके अंदर जितने भी हैं इन सबको ऐड करना है, सम करना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे एक्टिव सेल में शो होगी, और यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में कौन सा फंक्शन लगा है वो भी शो हो गया। कौन सा फंक्शन लगा है वो यहाँ पे दिया, और उस सेल का नाम कहाँ है, क्या है जिसके ऊपर फंक्शन लगा है, वो है F4। देखिए F4, ये हाईलाइट ऑरेंज दिख रहा है आपको, F4। सो F4 इज द name of the cell, address of the cell, and fx is the formula that we have applied on the cell। तो मैंने इसके ऊपर फॉर्मूला कौन सा लगाया था, फंक्शन लगाया था सम B4 से E4, तो ये वैल्यू मेरी आ गई। सो दिस इज द 3 मेथड्स कि हम किस तरह से एंटर कर सकते हैं फॉर्मूले को। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि रेंज क्या होती है और किस तरह से है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड all the topics. If you have any problem, you can message me. Thank you.